Good evening, guys. Today I am going to discuss our new topic of operation research that is called simulation. Simulation in layman language, simulation simply means to make imitation, or you can say to make prediction, to make estimation. But in OR terms, simulation simply means it is a process of designing a model of a real system and conducting experiment with the model for the purpose of understanding the behavior for the operation of the system. Means under simulation, first step, any real problem is converted into artificial structure, and on that artificial structure you conducted all your experiment so that you can easily understand the behavior of the real system. In other words, you can say duplication of original system, or to understand the implementation of the system. Suppose in HR, you have studied training methods. There are two types of training method: on job and off job training method, on job training method. In on job training method, one method is there that's called vestibule training method. I hope you all have studied that method. अंडर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड वहां भी सिमुलेशन था कि एनी फर्स्ट स्टेप क्या था, एनी रियल प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर. कि जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, सपोज अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल लूं इससे पहले, हैव यू सीन आंखें मूवी? द स्टारकास्ट ऑफ आंखें मूवी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, अर्जुन रामपाल. अगर किसी ने भी देखी है, उस मूवी का थीम क्या था? बैंक रॉबरी. तो अंडर दैट मूवी जो अमिताभ बच्चन था, उसने एक बैंक रॉबरी के लिए प्लान बनाया. अपना पूरा बैंक का स्ट्रक्चर उसने क्रिएट करा अपने बेसमेंट में. और जितने भी उसमें मेन लीड अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, दे ऑल वर ब्लाइंड पर्सन. अब ब्लाइंड को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि ब्लाइंड बंदे भी चोरी कर सकते हैं. उन्होंने उस ब्लाइंड बंदों को सबको वहां पे ट्रेन करवाया, उस सारा स्ट्रक्चर बना के अपने बेसमेंट में कि ये बैंक की स्टेयर्स है, यहाँ पे कैश काउंटर है, यहाँ पे ये चीज है. और जब बंदा एक्चुअल ट्रेन हो गया, देन वो उसको रियल बैंक में लेके गया ट्रेनिंग के लिए. तो सेम इन सिमुलेशन की कंपनीज में अगर सपोज नए प्रोजेक्ट में अगर एकदम से मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव है, कोई भी ओरिजिनल सिस्टम है, अगर आप उस पर एकदम से इन्वेस्टमेंट करते हो, कल को अगर फेलियर होता है तो सारा का सारा लॉस होता है. तो सिमुलेशन में यही चीज है कि जो भी आपकी रियल प्रॉब्लम, पहले हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया. अगर लाइक मोबाइल शॉप में अगर आप जाते हो, मोबाइल शॉप में वहां पे डमीज पड़ी होती है मोबाइल्स की, क्योंकि हर जितने भी शॉपकीपर हैं, मोबाइल एजेंसीज हैं, सारे उसमें डिस्प्ले में ओरिजिनल मोबाइल नहीं रख सकते. ऑब्वियस है, सारे मोबाइल्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने क्या किया, डम्मी रख दी. डम्मी को आप देखो, पसंद करो, उसके बाद एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा. तो सेम चीज सिमुलेशन में होती है. कोई भी रियल प्रॉब्लम होती है, उसका आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. जितने भी एक्सपेरिमेंट है, प्रॉब्लम्स है, ऑल एक्सपेरिमेंट आप उस पर कंडक्ट करोगे, और जो एक्चुअल सोल्यूशन आएगा दैट इज इंप्लीमेंटेड इन रियल लाइफ. तो दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन. And this method is used by various types of organization for their different use, like as per business decision, for inventory control, financing decision, or waiting line theory. But in your chapter, there are mainly two use of simulation that's a part of your syllabus, for inventory control and waiting line theory. In my last video, I have already studied your waiting line theory chapter. Let's start with the theory practical portion. There is only one method of simulation, that is Monte Carlo simulation technique. This method is an experiment on chance. Chance means probability. कि all experiment will be done on probabilities. That is already given in the statement. And second point, use random number. Now, what do you mean by random number? As per name says कि you have to choose some numbers. Randomly आपको choose करना है, but that number should be in 2 digit. कि अगर suppose if you take 0 as a random number, then you have to take double 0, 0, 0. If you want to choose 6 as a random number, then you have to mention 0, 6. Random number always should be in 2 digit. और last random number should be 99. क्योंकि अगर आप 100 लोगे तो वो 3 डिजिट में आ जाएगा. तो उन्हीं रैंडम नंबर के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे अंडर अनसर्टेनिटी. और डिसीजन मेकिंग थ्योरी में आपको अनसर्टेनिटी का मीनिंग पता है, और ये चीज भी आपको हर चीज पता है कि एज यू ऑल नो आवर बिजनेस वर्ल्ड इज ऑपरेट इन अनसर्टेनिटी. And the steps of this technique: first step, establishing probability distribution. Let me explain with the help of example. Suppose this one is your example. Dr. Strong is a dentist who schedules all her patient for 30 minutes appointment. एक डॉक्टर स्ट्रोंग है, डेंटिस्ट है, वो अपने सारे पेशेंट को अपॉइंटमेंट कैसे देता है? 30 मिनट्स की. Some of the patient take more or less than 30 minutes depending on the type of dental work to be done.
अब कुछ पेशेंट कम भी टाइम लेते हैं, कुछ ज्यादा भी लेते हैं, डिपेंड करता है उनके टाइम के ऊपर, डेंटल वर्क के ऊपर। द फ्लोइंग समरी शो द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्क, देयर प्रोबेबिलिटी एंड टाइम एक्चुअली नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो, जो भी पेशेंट आ रहा है डेंटिस्ट पे, क्लिनिक पे आ रहा है, वो किस काम के लिए आ रहा है? कोई बंदा फीलिंग के लिए आ रहा है, कोई बंदा क्राउन के लिए आ रहा है, कोई क्लीनिंग के लिए आ रहा है, कोई एक्सट्रैक्टिंग के लिए आ रहा है, कोई चेकअप के लिए आ रहा है। एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ वर्क वो भी आपको गिवन है। फॉर फीलिंग के लिए टाइम कंजप्शन कितना रहेगा? 45 मिनट्स। क्राउन के लिए 16, 15, 45। एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स वो भी आपको बता रखे हैं कि फीलिंग के लिए नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ रहे हैं, 40, क्राउन के लिए 15। क्लियर। उसके बाद स्टेटमेंट में उसने क्या बताया? सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर 4 आवर्स। 4 आवर के लिए आपको सिमुलेट करना है। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू सिमुलेशन सिंपली मीन्स टू मेक प्रिडिक्शन, estimation of future demand, and find out the average waiting time for the patient as well as the idleness of doctor। आपको find out क्या करना है? average waiting time for the patient as well as the idleness of doctor। Second thing, assume that all the patients show up at the clinic at exactly their scheduled time, arrival starting at 8 a.m। One thing is already mentioned here, all customers are, all patients are punctual, they are on being time। और clinic start कितने बजे हो रहा है? 8 a.m। यूज द फ्लोइंग रैंडम नंबर फॉर हैंडलिंग द अबव प्रॉब्लम। आपको कुछ रैंडम नंबर भी दे रखे हैं, 40, 82, 11, 34। मैंने एक चीज बताई थी, रैंडम नंबर शुड बी इन 2 डिजिट। अगर आप देखोगे लास्ट लाइन में 40, 82, अगर रैंडम नंबर नहीं भी गिवन होते, आप कुछ भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं एज पर योर विश, बट दैट शुड बी इन 2 डिजिट। क्लियर। स्टेटमेंट क्लियर होगी। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि डॉक्टर स्ट्रोंग है, डेंटिस्ट है, वो अपने सारे पेशेंट को 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट दे रहा है, और पेशेंट किस किस काम के लिए आ रहा है वो सब मेंशन है। क्लियर। नाउ अब स्टेप्स देखो उसमें क्या थे सिमुलेशन के। सोल्व बाय, एक ही मेथड है सिमुलेशन में, दैट इज मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी कैसे बनाओगे? अंडर सिमुलेशन यू हैव टू मेक 2 टाइप्स ऑफ टेबल। फर्स्ट इज रैंडम नंबर इंटरवल टेबल एंड सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटल और ऑल्सो नोन एज सिमुलेटेड वर्कशीट। फर्स्ट इज रैंडम नंबर इंटरवल टेबल। देखो टाइप्स ऑफ वर्क आपको गिवन था, फीलिंग, क्राउन, एक्सेट्रा, और उसका कितनी प्रोबेबिलिटी थी। अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी भी आपको मेंशन थी, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 15, 45, 15, और नंबर ऑफ पेशेंट 40, 15, 15, 10, 20, नंबर ऑफ पेशेंट और टाइम रिक्वायर्ड। If probability is not mentioned, you can easily calculate probability by using this formula. Number of favorable cases upon में total number of cases, as you all know. क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप अंडर मोंटे कार्लो टेक्निक, फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी? जो भी आपको टाइम गिवन था, फर्स्ट 40 पेशेंट, तो फेवरेबल केस कितने हैं? 40 डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट, 40 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20, 100। तो 40 बाय 100, 40। ऐसे सेम 15 बाय 100, 15, 15 बाय 100, 10 बाय 100, 20 बाय 100। तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, 40, 15, 15, 10, 20। सेकेंड पार्ट, अंडर दिस स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट कॉम्पलेटिव प्रोबेबिलिटी, जस्ट लाइक जैसे आप मीडियन में करते थे। तो फर्स्ट 40 से 40 प्लस 15, 55, 55 प्लस 15, 70, 70 प्लस 10, 80, 80 प्लस 20, 100। Now, second part, फर्स्ट पार्ट इज एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। वो आपने देखा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 40 पेशेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट, तो 40 बाय 100 40, 15 बाय 100 15, वो हमारा सारा निकल गया। सेकेंड पार्ट इज कॉम्पलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कॉम्पलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो भी आपने निकाल ली फर्स्ट वाली सेम। उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड, 40 प्लस 15, 55, 50 प्लस 15, 70, 70 प्लस 10, 80, 80 प्लस 10, 100। देन थर्ड पार्ट, सेकेंड रैंडम नंबर इंटरवल्स, कि मीन्स यू हैव टू मेक इंटरवल्स। इंटरवल कैसे बनाओगे? स्टार्ट विद 0 0 और प्लस जो भी कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट है 40 में से 1 माइनस करना है, 40 माइनस 1
39। नेक्स्ट रैंडम नंबर आफ्टर 39 कितना आएगा 40। फिर 55 है सेकेंड में, 55 में से 1 माइनस करो 54। फिर 54 के बाद 55, अब यहाँ पे क्या है 70 लेस 1 तो 69। 69 के बाद 70, 70 में से 80 में से 1 माइनस करो 79, और लास्ट 79 के बाद 80 और 80 to 99। I already told you random number should be in 2 digit और लास्ट random number would be 99। वो देखो आपका अपने आप ही 99 आ गया। क्लियर? Is there any problem in first 3 steps of Monte Carlo simulation? First step establishing probability distribution. Probability आपको given होगी, नहीं given होगी तो by using this formula you can calculate probability number of favorable cases upon में total number of cases, और number of patients आपको दे रखे थे, probability आपको patient के बेस पे निकालनी है। तो favorable cases 40, total number of cases sum total of these तो 100। So that is probability. Second step is cumulative probability. First वाली same corresponding add. Then how to make random number interval, start with 0 0 then 1 माइनस करते हैं। जब 40 minus 1 39, फिर 39 से आगे मीन्स योर इंटरवल शुड बी इन इंक्लूसिव सीरीज। याद होगा आपको स्टैट्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, वन इज इंक्लूसिव, सेकंड वन इज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, वेयर द फर्स्ट इंटरवल अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल डोंट मैच विद द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड इंटरवल। देखो 0 0 से स्टार्ट करनी है, 40 माइनस 1 39, 39 के बाद नेक्स्ट 40, 40 में से फिर 1 माइनस करो 55 में से 54, फिर 55 टू 69, 70 टू 79, 80 टू 99। तो डेट इज योर फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट टेबल जितने भी केस आएंगे सिमुलेशन के रिलेटेड टू इन्वेंट्री प्रॉब्लम, रिलेटेड टू वेटिंग लाइन प्रॉब्लम, ये सारे केसेस आपके सेम रहेंगे। क्लियर? अब सेकेंड टेबल सिमुलेटेड वर्कशीट मीन्स अंडर दिस टेबल यू हैव टू कैलकुलेट जो भी आपसे पूछा जाएगा। देखो जो सेकेंड लास्ट स्टेप है जनरेटिंग रैंडम नंबर। अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट करने हैं वो आपको सेकेंड टेबल में करने हैं, और प्लस टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड यूजिंग द अबव 4 स्टेप। जो क्वेश्चन उसने पूछे थे, अब स्टेटमेंट में उसने क्या पूछा था, सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर 4 आवर्स। अब देखो 4 आवर के लिए क्लिनिक सिमुलेट करना है। अब और हर पेशेंट को अपॉइंटमेंट कितने मिनट्स की मिली है 30 मिनट्स की। अगर पहला पेशेंट 8 बजे आ रहा है और जो उसने बताया हुआ है क्लिनिक स्टार्ट कितने बजे हो रहा है 8 AM, अगर पहला 8 बजे आ रहा है तो दूसरा कितने बजे आएगा 8:30, तीसरा कितने बजे आएगा 9, 9:30, 10 चलता रहेगा। और 4 आवर्स के लिए आपको करना है क्लिनिक, और फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट, पेशेंट का वेटिंग टाइम निकालना है एज वेल एज द आइडलनेस ऑफ डॉक्टर। और ये कैसे निकालोगे, 4th स्टेप जनरेटिंग रैंडम नंबर, 5th स्टेप आपको क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वो सब होगा सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में देखो फर्स्ट पॉइंट बनेगा पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट आपके कितने बनेंगे 8, क्योंकि 4 आवर के लिए निकालना है और क्लिनिक स्टार्ट हो रहा है 8 बजे। तो अगर पहला पेशेंट 8 बजे आएगा तो दूसरा कितने बजे आएगा 8:30। क्योंकि खुद सोचो अगर 4 आवर के लिए क्लिनिक आप सिमुलेट कर रहे हो और हर पेशेंट को 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट दे रहे हो, तो 1 आवर में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आप अटेंड करोगे 4 आवर्स में, सॉरी। अगर हर पेशेंट को आप 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट दे रहे हो और इट इज मेंशन इन द स्टेटमेंट यू हैव टू सिमुलेट द क्लिनिक फॉर 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में आप कितने पेशेंट अटेंड करोगे, ऑब्वियसली 8 पेशेंट। 30 मिनट्स एक पेशेंट को दे रहे हो तो 1 आवर में 2 पेशेंट, 2 आवर में 4 पेशेंट, 3 आवर में 6 पेशेंट और 4 आवर में 8 पेशेंट, तभी आपने 8 तक काउंटिंग चलाई। उसके बाद से मेंशन किया होता क्लिनिक स्टार्ट एग्जैक्टली एट 8 AM और एग्ज्यूम ऑल द पेशेंट शो अप एट द क्लिनिक एग्जैक्टली देयर शेड्यूल्ड टाइम। और हर पेशेंट भी कब आ रहा है अपने टाइम पे आ रहा है, और क्लिनिक स्टार्ट कब हो रहा है 8 AM, तो सेकेंड पेशेंट कब आएगा 8:30, थर्ड 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30। क्लियर? यहां तक पूछना है। उसके बाद जो रैंडम नंबर आपको दे रखे थे स्टेटमेंट में लास्ट में, यूज रैंडम नंबर 40, 82, 11, 34, कि कोई भी रैंडम नंबर लेके हमें सिमुलेट करना है तो रैंडम नंबर आपने ले लिए 8 तक। 40, 32 गिवन है, अगर इन्हें नहीं गिवन होते तो चूज एनी रैंडम नंबर बट दैट शुड बी इन 2 डिजिट, इधर 10, 20, 30, 50, 56, 77, 99। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स अब ये चीज कैसे निकालोगे, अब रैंडम नंबर फर्स्ट कितना है 40, अब 40 रैंडम नंबर आप देखोगे किस कैटेगरी में आ रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। अब 40 रैंडम नंबर इंटरवल में देखो कहां पे लाइक कर रहा है 40 टू 54 में, 40 टू 54 किस कैटेगरी में आ रहा है क्राउन में,
तो आपने क्राउन लिखा। सेकंड रैंडम नंबर इज 82, 82 लाई बिटवीन 80 टू 99, वो किस में आ रहा है, चेकअप में, तो मेंशन चेकअप। नेक्स्ट रैंडम नंबर इज 11, 11 देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 टू 39, और वो किस कैटेगरी में आ रहा है, फीलिंग, फीलिंग। नेक्स्ट रैंडम नंबर इज 34, 34 आप देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, फीलिंग, फीलिंग। 25 भी कहाँ पे लाई कर रहा है, फीलिंग, तो 25 भी फीलिंग। देन नेक्स्ट 66, 66 देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, 55 टू 69, डेट कम्स अंडर क्लीनिंग। उसके बाद 17 है, 17 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले में, फीलिंग। 79 कहाँ पे लाई कर रहा है, 70 टू 79 एक्सट्रैक्टिंग। क्लियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो सर्विस स्टार्ट टाइम। देखो अब पेशेंट कब आ रहा है, एग्जैक्टली एट द शेड्यूल टाइम, जो भी मुझको शेड्यूल टाइम मिला था 8 AM, और सर्विस स्टार्ट भी कब होगी, जब पेशेंट भी टाइम पे आ रहा है और डॉक्टर भी 8 AM को रहा है, तो सर्विस स्टार्ट भी कब होगी, 8 AM स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज मैंने नेक्स्ट टेबल में बनाई है। अराइवल टाइम हर पेशेंट का आपको गिवन था 8, 8:30, और पेशेंट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अराइवल टाइम हर पेशेंट 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो सर्विस स्टार्ट भी कब होगी, 8 AM। और सर्विस ड्यूरेशन टाइम, अब ये ड्यूरेशन टाइम भी कैसे निकालोगे, फर्स्ट टेबल से देखो। फर्स्ट रैंडम नंबर आपका देखो जो आपने निकाला 40 किसके अंदर था, क्राउन में। अब क्राउन का इनिशियल टेबल में आप देखोगे जो स्टेटमेंट में है, क्राउन को कितना टाइम चाहिए था, उस पर कितना टाइम कंज्यूम कर रहा था डॉक्टर, 60 मिनट। तो फर्स्ट वाली टेबल में आपने 60 मिनट लिखा, लिखा। सेकंड पेशेंट किस कैटेगरी में आ रहा था, चेकअप में, चेकअप का कितना टाइम गिवन था, 15 मिनट्स। तो देखो सेकंड पेशेंट के आगे आपने 15 मिनट्स लिखा। क्लियर। अब थर्ड पेशेंट देखो, थर्ड पेशेंट आपका क्या था, फीलिंग। अब फीलिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था, 45 मिनट्स, 45। इस तरह से सारे बनाने हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट और आइडल टाइम फॉर द डॉक्टर। अब सर्विस स्टार्ट कब हो रही है, 8 AM, और पेशेंट भी कितने बजे आ रहा है, 8 AM, और उस पर कंज्यूम कितना टाइम हो रहा है, 60। तो सर्विस एंड कब होगी, सर्विस एंड कैसे कैलकुलेट करोगे, सर्विस स्टार्ट टाइम प्लस सर्विस ड्यूरेशन टाइम। सर्विस स्टार्ट मीन्स फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इनको मैंने नेम दे दिया 1 + 2 का टोटल। तो 8 o'clock सर्विस स्टार्ट हो रही हो, कितने मिनट्स जा रहे हैं उसमें, 60 मीन्स 1 आवर। तो एंड कब होगी, 9 AM। अब देखो पेशेंट भी 8 बजे आ रहा है, डॉक्टर भी 8 बजे आ रहा है, तो इस केस में किसी को वेट करना पड़ा, पेशेंट या डॉक्टर में से, ना डॉक्टर फ्री बैठा ना पेशेंट, तो इसे दोनों में देखो पेशेंट वेटिंग टाइम भी नील और डॉक्टर आइडल टाइम भी नील। अब देखो अब पिछला पेशेंट से डॉक्टर कब फ्री हो रहा है, 9 बजे, बट अगला पेशेंट तो अपने ऑन टाइम आएगा 8:30, बट सर्विस स्टार्ट कब होगी, जो दोनों में से लेटर होगा, कि डॉक्टर तो फ्री हो रहा है पिछले पेशेंट से 9 बजे, और अगला पेशेंट कब आ रहा है 8:30 पे, तो ऑब्वियसली सर्विस कब स्टार्ट होगी, 9 o'clock। सिंपल सा लेमैन एग्जांपल लो, आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है 9:05। अगर 9:05 पे पूरी क्लास ही खाली है और मैं आ जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो मैं क्या अपना लेक्चर स्टार्ट कर पाऊंगा जब बच्चा ही नहीं है। तो अगर आप एंट्री मारते हो 9:10 पे, तो मेरी सर्विस कब स्टार्ट होगी, 9:10 पे। और इससे अपोजिट अगर लेते हैं, सपोज बच्चा 9:05 पे आ गया, टीचर 9:15 पे आ रहा है, तब भी सर्विस कब स्टार्ट होगी, 9:15 पे, जो दोनों में से ग्रेटर होगा। तो सेम चीज, पिछला पेशेंट कब जा रहा है, 9 o'clock, डॉक्टर फ्री कब हो रहा है, 9 o'clock, और अगला पेशेंट कब आ रहा है 8:30, तो सर्विस स्टार्ट कब होगी, 9, और 9 में 15 ऐड करोगे कितना जाएगा, 9:15। अब देखो पिछला पेशेंट जा रहा है 9 बजे, अगला पेशेंट आ रहा है 8:30। अब इस केस में किसको वेट करना पड़ा, डॉक्टर को या पेशेंट को। देखो पिछला पेशेंट डॉक्टर फ्री हो रहा है लास्ट पेशेंट से 9 o'clock, और अगला पेशेंट आ रहा है 8:30 पे, और सर्विस स्टार्ट हो रही है 9 बजे। तो इस केस में किसको वेट करना पड़ा, पेशेंट को 30 मिनट्स। तो देखो 30 मिनट्स पेशेंट में आया, डॉक्टर तो फ्री हुआ ही नहीं, और ऐसे ही अब 15 मिनट्स ऐड हुए। अब देखो पिछले पेशेंट से डॉक्टर फ्री हो रहा है 9:15 पे, अगला पेशेंट कितने बजे आ रहा है, 9 बजे, और सर्विस स्टार्ट कब होगी, ऑब्वियसली 9:15 पे। अब 9:15 पे 15 मिनट वो ले रहे हैं, तो एंड कब होगा, 10 o'clock। इस केस में 15 मिनट पेशेंट को वेट करना पड़ा। अब देखो पिछला पेशेंट कब जा रहा है, 10 o'clock,
अगला पेशेंट कब आ रहा है 9:30, तो सर्विस तो स्टार्ट होगी 10 o'clock, और इस केस में किसको वेट करना पड़ा 30 मिनट्स पेशेंट को। और ऐसे ये सर्विस कब फ्री होगी 10:45 पे। अब पिछला पेशेंट कब जा रहा है 10:45 पे, अगला कब आ रहा है 10, तो यहाँ भी 45 मिनट्स पेशेंट को ही वेट करना पड़ा, डॉक्टर तो फ्री बैठा ही नहीं, और 10:45 पे सर्विस स्टार्ट होगी। अब 10:45 में फिर 45 मिनट्स ऐड करोगे तो 11:30 फ्री। अब पिछला पेशेंट से फ्री कब हो रहा है डॉक्टर 11:30, अगला पेशेंट कब आ रहा है 10:30, तो यहाँ भी 60 मिनट 1 आवर किसको वेट करना पड़ा पेशेंट को। तो ये सर्विस स्टार्ट कब होगी 11:30, और 11:30 में 15 ऐड करोगे तो पेशेंट जाएगा कब 11:45। अब यहाँ पे कब जा रहा है 11:45, अगला पेशेंट कब आ रहा है 11 o'clock, तो यहाँ भी किसको वेट करना पड़ा पेशेंट को, सर्विस स्टार्ट होगी 11:45 पे। अब 11:45 में 45 ऐड करोगे 12:30। अब अगला पेशेंट कब जा रहा है 12:30, ये कब आ रहा है 11:30, तो सर्विस स्टार्ट कब होगी 12:30। यहाँ भी 60 मिनट पेशेंट को वेट करना पड़ा, और सर्विस फ्री कब होगी 1:15 पे। आगे हमें बनाना ही नहीं। देखो डॉक्टर तो किसी भी केस में खाली नहीं बैठा। क्लियर। और नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, एवरेज मीन्स मीन, तो इन सबका टोटल 30 + 15 + दिस इज सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय 8, कि 30 + 15 45, 45 + 45 90, 90 + 30 120, 180, 180 240, 240 285, तो 285 डिवाइडेड बाय 8, दैट्स कॉल्ड एवरेज वेटिंग टाइम। दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल एक लेते हैं। सपोज a company manufacture around 200 mopeds. Depending upon the availability of raw material and other conditions, the daily production has been varying from 196 moped to 204 moped, whose probability is given below. आपको प्रोडक्शन दे रखा है पर डे that lies from 196 to 204 and the probability is also given. The finished moped are transported in a 3-storey lorry that can accommodate only 200 moped. कि जैसे ही आपकी बाइक्स बनती हैं या मोपेड बनती हैं तो जाती कैसे हैं, एक लॉरी आती है जो उनको लेके जाती है, बट उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 200 मोपेड, दैट इज गिवन। यूजिंग द फ्लोइंग 15 रैंडम नंबर दे रखे हैं, और फाइंड आउट व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोपेड वेटिंग इन द फैक्ट्री। कितने एवरेज नंबर ऑफ मोपेड वेट कर रहे हैं फैक्ट्री में, और वो कब होगा जिस दिन आपका प्रोडक्शन मोर देन 200 से होगा। कि सपोज आपकी शॉप पे आपका प्रोडक्शन हाउस में मोपेड बने 205, बट लोरी लेके कितना जा सकती है 200, देन 5 मोपेड विल बी वेटिंग इन ए फैक्ट्री। और सेकंड पार्ट निकालना है व्हाट विल बी द एवरेज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द लोरी। अब एम्प्टी स्पेस कब होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा, लोरी लेके ज्यादा जा सकती है, कि व्हेन लोरी कैपेसिटी इज मोर देन प्रोडक्शन कैपेसिटी, तब एम्प्टी स्पेस होगा। तो ये चीज आपको निकालनी है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट स्टेप सेम, प्रोबेबिलिटी गिवन है तो कॉम्युलेटिव निकाल लें। अब डेसिमल हटा दो, 5 का मतलब 5, 5 + 9 14, 14 + 12 26, 26 + 14 40, 60 75 86 94 100। सेकेंड पार्ट इज रैंडम नंबर इंटरवल। फर्स्ट टेबल इज कॉमन, रैंडम नंबर इंटरवल आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्ट विद 0 0, और जो यहाँ पे उसमें से 1 - 5 - 1 0 4, 4 के बाद 5 5 to 13, उसके बाद 14 to 25, 26 to 39, 42 59, 62 74, 75 to 85, 86 to 93, 94 to 99। नेक्स्ट स्टेप सिमुलेटेड वर्कशीट। रैंडम नंबर आपको गिवन थे वो सारे लिखे, डे नंबर और प्रोडक्शन। देखो फर्स्ट रैंडम नंबर कितना है 82 देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है 75 to 82 में 85 में, और उसकी वैल्यू कितनी है 202। तो फर्स्ट डे का प्रोडक्शन आ गया 202। ऐसे सेकंड रैंडम नंबर कितना है 89, तो 89 की वैल्यू देखो कहाँ पे लाई करी है 86 to 93, उसकी वैल्यू कितनी है 203। तो सेकंड डे प्रोडक्शन 203। नेक्स्ट कितने हैं 78 लाई बिटवीन 75 to 85 और हुज वैल्यूज इज 202, तो 202। सेम 24 देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है 24 लाई बिटवीन 14 to 25, हुज वैल्यूज इज 198। इस तरह से सारी वैल्यूज आपको लिखनी है।
ऐसे 53 देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, 40 to 59 उसकी वैल्यू कितनी है 200। 61 आप देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, 60 to 74 वैल्यू कितनी है 201। ऐसे 18 आपको दिखना है कहाँ पे लाई कर रहा है, 14 to 25 198। ऐसे 45 आपको दिखना है, 45 लाई कर रहा है 40 से 59 वैल्यू कितनी है 200। ऐसे 04 देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले में ही 196। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबर इज 23 देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, 14 to 25 198। 50 आप देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, 50 लाई कर रहा है 200। 77 आप देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, 75 to 85 202। 27 आप देखोगे कहाँ पे लाई कर रहा है, डेड लाइस 26 to 39 199। नाउ 54 and 10। 54 लाई कर रहा है 40 to 59 200 एंड लास्ट वन इज 10 लाई कर रहा है 5 to 13 दैट इज 197। नाउ अब देखो लॉरी की मैक्सिमम कैपेसिटी 200 पर डे, 200 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 दैट इज फिक्स, ये आपको गिवन ही था। अब देखो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन ए फैक्ट्री। नाउ कंपेयर लॉरी कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। फर्स्ट डे योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 202 एंड लॉरी की कैपेसिटी कितनी है 200। लॉरी लेके जा सकते हैं 200 और आपका प्रोडक्शन कितने का है 202, तो ऑब्वियसली 2 मोमेंट्स आपके क्या करेंगे वेट करेंगे, बट लॉरी में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। अब सेकेंड डे देखो लॉरी की कैपेसिटी कितनी है सेम 200, बट प्रोडक्शन कितना हुआ 3, तो 3 आपके क्या करेंगे दैट वुड बी वेटिंग इन ए फैक्ट्री। तो 2 पिछले के खड़े हैं, 2 आपके लास्ट डे की वेटिंग है और 3 मोपेड्स और आ गई, तो टोटल इस दिन कितनी मोपेड्स वेट कर रही हैं 5 और एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं है। थर्ड डे भी देखो 202 और 200 प्रोडक्शन हुआ 202 का, लॉरी की कैपेसिटी कितनी है 200, तो 2 और वेट करेंगे तो 5 + 2 कितना आ गया 7, एम्प्टी स्पेस नहीं है। अब थर्ड डे देखो फोर्थ डे 198 का प्रोडक्शन हुआ, लॉरी की कैपेसिटी कितनी है 2। अब आप बोलोगे 2 का एम्प्टी स्पेस कि लॉरी की कैपेसिटी तो 200 है और प्रोडक्शन हुआ 198 का, बट लास्ट डे की लॉरी भी तो खड़ी है, जब 7 पिछली हैं तो 2 का स्पेस है, तो पीछे वाली लॉरी निकालोगे ना तो अब कितनी रह जाएंगी एम्प्टी स्पेस कुछ भी नहीं जाएगा, 7 में से 2 यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो इस दिन आपकी कितनी लॉरी फैक्ट्री में वेट करी है 5। नेक्स्ट डे को 200 की 200 चलेगी, 5 की 5 रही और कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पीछे की भी नहीं निकली और एग्जैक्ट 200 मैच हो गया। नेक्स्ट डे 201 और 2 तो 6 होगी, ऐसे नेक्स्ट डे कितनी रह जाएंगी 4, ऐसे सेम निकालते जाओगे लास्ट में टोटल करके एवरेज। क्लियर? थैंक यू सो मच। If you like this video, kindly subscribe my channel. Also click on the bell icon. Thank you so much.